Thank you for to the management for giving me an opportunity to present the today's seminar on multiple intelligences. So let us see what is multiple intelligences and what are multiple intelligences and what is required by everyone or an individual. Why the multiple intelligences are required for teachers and learners. Let us see. The objective of today's workshop is Howard Gardner's theory of intelligence, to throw light on this, and what this theory is actually, and what is second language learning, integration of multiple intelligence theory, ESL classes. ESL classes, the classes English used as second language. ESL classes is English used as second language. So wherever the native speak English, so there is no problem because their main language is English. But in the areas or regions like us, Bihar, UP or Hindi speaking area, or in the areas where other than English language is spoken, there the integration of multiple intelligences becomes very important for the achievement of the objectives of the teaching and learning. And now what are the various issues and recommendations, and finally we will conclude it. Let us see what are the objectives of this session. What are the objectives in knowing and implementing the multiple intelligences? This is, learners have individual differences and learning styles. Every one of us, we are teachers and we have different ways of teaching in our subjects. All of us teach in a different way. Although the basics are the same, but the style of teaching varies. सहमत हैं सुमन सर? सहमत हैं ना भाई? ठीक है. Different approaches for varied intelligences and learning preferences. These are the objectives of this session. Howard Gardner, he proposed the theory of multiple intelligences. He was an American psychologist, and in 1986 he wrote a book, Frame of Mind. जैसे चश्मा का फ्रेम है, फ्रेम ऑफ माइंड, उन्होंने माइंड के फ्रेम की बात करी, उसको बुक बनाया उसका, and this work was presented in the year 1986. Being a psychologist, he was well aware of the behavior of the learners. He observed many learners and proposed the theory of multiple intelligences. This theory applied varied approaches to interpret information and solve problems. And this should be student-centered. In NEP 2020 and in the recent modifications or amendments that have been taking place in the field of education, the Ministry of Education and the experts in the field of education, they are highly focusing on
student centered learning. Earlier it was teacher centered. Still it is, whether we convince ourselves or not, but still we are teaching in a way which is teacher centered. Yes sir. Yes. आज भी, although because of several modifications that have been done from time to time, and the recommendations by the government and the educational bodies and personalities compelled us to be interactive and student centered. Students taught by multiple intelligence approach show positive attitude levels. Let us see what are these multiple intelligences. According to Howard Gardner, anything that is worth teaching can be presented in many different ways. In a variety of ways, a single thing can be presented. Same subject, different teachers, different styles. These multiple ways can make use of our multiple intelligences. और यही जो अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का लोगों का, उसमें हम मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बातों को समझ भी पाते हैं और इम्प्लीमेंट करने की भी क्षमता पा जाते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस एक ही टॉपिक अगेन कि बार बार पढ़ाया जाए, कि अलग अलग टीचर से पढ़ाया जाए, कि बहुत तरह का नॉलेज, जैसे इंटेलिजेंस है तब नहीं सर, मैं आ रहा हूँ। हमारे साहब भी जैसे आईबी में रहे हैं तो उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस का एग्जाम को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्चुअली देखिए सर, इसका क्या है ना कि कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि अब ये तो पता ही है कि हम लोगों का ब्रेन ही हम लोगों का रेगुलेटर है ना, और ब्रेन में कई एसोसिएशन एरियाज होते हैं। मैं इसको बायोलॉजिकल क्लास नहीं बनाना चाहता हूँ, तो बहुत सारे एसोसिएशन एरियाज होते हैं। कुछ एरिया लर्निंग के लिए है, कुछ मेमोरीज के लिए है, कुछ आर्ट के लिए एरिया होता है, कुछ थिंकिंग के लिए होता है अलग अलग एरियाज। मीडिया में भी है। हाँ हाँ ठीक है, सही बात है। आप देखिए तो मल्टीपल इंटेलिजेंस तो नाम से ही क्लियर है, मल्टीपल मतलब वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंसेस आर देयर। सिमिलरली यही चीज जो है हम लोग लर्नर में देखें तो देयर आर वेरियस लर्नर्स एंड ऑल ऑफ देम हैव वन और मोर क्वालिटीज। हर लर्नर में कोई ना कोई क्वालिटी तो है, चाहे वो किसी भी तरह का इंटेलिजेंस हो, एक ना एक तो देखने को मिल ही जाएगा। और अगर वो अच्छा लर्नर है तो उसमें आपको मल्टीपल इंटेलिजेंसेस भी देखने को मिलेंगे। क्या है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस? हॉवर्ड गार्डनर ने जो बताया उसको इनिशियली 7 प्रकार का बताया, फिर 8 कैटेगरी आया उसका, अभी तो 11 भी हैं, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट 8 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। दीज आर इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, bodily, kinesthetic, naturalistic, spatial, musical, logical और mathematical and interpersonal। तो ये अलग अलग तरह का इंटेलिजेंस है। जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हुआ, इसका क्या मतलब है भाई? when a person becomes master of spoken and written language, तो वो मास्टर कब बनेगा? सीधी सी बात है भाई, प्रैक्टिस करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा तभी बनेगा। ऐसे सोचने या कल्पना करने से बनेगा नहीं, है कि? अब अंग्रेजी, जहां पर wherever the English is not the native language, how it should be taught? कैसे इसको पढ़ाया जाए? In the beginning classes, initial classes, say KG classes 1, 2, 3 or up to primary level, there are so many ways by which it can be done। कलर के माध्यम से, ठीक है, ग्राफिक्स के माध्यम से इन सारी चीजों को बताया जा सकता है। नेक्स्ट इज योर विजुअल स्पेशियल।
स्पेशल ये क्या हो गया, एबिलिटी टू इमेजिन एंड फॉर्म पिक्चर्स एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू विजुअल आइडिया एंड एक्सप्रेशंस। स्पेशल मतलब जहाँ कोई स्पेस मिलता हो, कोई जगह मिलती हो, सोच सके और उसको लर्नर जो है वो एक्सप्रेस कर सके। कोई जगह मिलनी चाहिए, मतलब ब्रेन में कोई जगह होनी चाहिए जहाँ वो सोच सके और उसको एक्सप्रेस कर सके। फिर आपका होता है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल या लॉजिकल मैथमेटिकल। तो ऐसे इंटेलिजेंस वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर गुड इन यूजिंग नंबर्स एंड they are good in solving problems. They enjoy facing new challenges in their lives. तो अभी तक हम लोगों ने जितना देखा है उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस भी कर लें आपस में। जैसे लिंग्विस्टिक, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? लिंग्विस्टिक एग्जांपल का, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का एग्जांपल क्या हो सकता है? ये तो भाई उसका मीनिंग हो गया कि ठीक है, हाँ, जो मास्टरी अपना रखे हुए स्पोकन में और रिटन में। कौन सा लैंग्वेज? एनी लैंग्वेज सर, एनी लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज जो आपका स्टूडेंट इजीली समझ सके, एनी स्टूडेंट अंडरस्टैंड। हाँ, एनी स्टूडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक का मतलब अब से हिंदी पढ़ रहा है तो हिंदी में, अंग्रेजी पढ़ रहा है तो अंग्रेजी में, जर्मन है तो जर्मन, फ्रेंच है तो फ्रेंच, हाँ, कोई भी लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक मतलब यही होता है, हाँ, पार्टेनिंग टू लैंग्वेज, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का एक आध बढ़िया एग्जांपल कोई दीजिए आप में से कोई एक आदमी। Linguistic intelligence, what I feel, is ability to use a language, any language, effectively. That's fine, sir. That's fine, brilliant. Any language. हाँ, तनु मैडम कह रही थी। क्या बोल रही हैं मैम? एक्सप्रेशन हाँ, बिल्कुल सही बात। ऑफ लैंग्वेज। Absolutely agree, मैम and sir. अब आपकी जैसे कुछ एक एग्जांपल इसका, क्या हम लोग अपने आप को इस एग्जांपल में डाल सकते हैं? टीचर्स भी गुड, ये इंग्लिश, हम केमिस्ट्री, इधर फिजिक्स, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस चल रहा है ऑलरेडी। चल रहा है, वेरी गुड, सही है। क्या करेंगे? और कोई फ्यूजन, बच्चों फ्यूजन ही करते हैं। हाँ, फ्यूजन तो होता ही है हम लोग। ये पढ़ा गया है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है, पर्सन्स एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली। अभी सर ने बताया यही बात, बोथ ओरल एंड रिटन, व्हाट एवर लैंग्वेज इट मे बी, कोई भी लैंग्वेज। तो ये कैसे डेवलप हो सकता है? स्टोरी टेलिंग एक मीन्स है, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हो सकता है। बहुत सारे बच्चों में कंपोजिशन की क्षमता होती है, वो पोएम वगैरह भी लिखते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन, गैप फिल्स, कंडक्टिंग इंटरव्यूज एंड वर्ड गेम्स। By doing all these activities, the linguistic intelligence can be improved in a learner. ठीक है? Now visual spatial intelligence, ability to imagine and form pictures and transform them into visual ideas and expressions. जैसे कोई पिक्चर दिया हुआ है, दे दिया स्टूडेंट को कोई पिक्चर, उसको डिस्क्राइब करे। एग्जाम्स में भी आता है, पिक्चर दिया रहता है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत में, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आता है। यूजिंग विजुअल इमेजेस फॉर टीचिंग वोकैबुलरी, विजुअल इमेज को लेकर के और वोकैब्स को उनका जो है स्ट्रॉन्ग करने का प्रोसीजर है, करते भी हैं। वीडियो एक्सरसाइजेज एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स आजकल दिया भी जाता है। all of us are involved in this practice. Using charts and maps, well known, well done by everyone. Graphics analysis and concept maps. तो ये सारा जो है आपका विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ रहा है। और तीसरा है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, गुड यूजिंग नंबर्स, solving problems, enjoy facing new challenges in life. The concept mapping, mind mapping, concept mapping, flow chart, जब किसी चैप्टर का फ्लो चार्ट बनाते हैं
तो फ्लो चार्ट में जब तक आपने पूरा चैप्टर का कंसेप्ट हासिल नहीं किया, यू कैन नॉट ड्रॉ द फ्लो चार्ट। माइंड मैप या कंसेप्ट मैप वही हो। सीक्वेंसिंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हिस्ट्री वगैरह पढ़ाते हैं या और कोई भी चीज में जहां क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की आवश्यकता है, देयर इट इज एम्प्लॉयड। एंड word order activities, pattern games, jigsaw puzzles, all these are the methods by which the logical and mathematical intelligence can be enhanced in the learners, है कि नहीं? अब लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का अगर कोई एपिटोम है तो आप दे सकते हैं। अब आर्यभट्ट थे पुराने जमाने में, आजकल के जमाने में कौन है सर? पुराने जमाने में तो आर्यभट्ट थे और भी बहुत सारे लोग थे, है कि नहीं? एक हमारे आरा भोजपुर के सिंह साहब थे, वशिष्ठ बाबू, वशिष्ठ नारायण सिंह, डॉक्टर मधुप्रमा, बिहार शरीफ में डॉक्टर मधुप्रमा साहब हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो लॉजिकल हैं, मैथमेटिकल हैं, है कि नहीं? अब आप आइए म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सेंसिटिविटी टू म्यूजिक, रिदम एंड टोन। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, singing a song or rap, making presentations using sound or music and tongue twisters। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस का अगर कोई एपिटोम की बात करें तो लीजिए कोई नाम है फटाफट। सामने में ये आप रहमान को आप बोल सकते हैं आज के डेट में, है ना? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हमारे टाइम के, ठीक है, और सौरभ सर के टाइम के रहमान साहब हैं, और पंडित सर के टाइम के, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे लर्नर्स में ये एबिलिटी होती है, उनको गाना के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है? अब गाना के माध्यम से भाई कैसे सीखेंगे? तो चलिए एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, आपके सामने पेश कर दे रहे हैं, है कि नहीं? म्यूजिक के साथ। हाँ, म्यूजिकल मतलब अब इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं, मतलब वोकल। मैं 2-4 लाइन आप लोगों को शेयर करता हूँ। एक बच्चा बोला, काफी साल पहले की बात है, मैं उन लोगों को एल्गी फंजाई पढ़ा रहा था। दिस इज द टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। एल्गी फंजाई पढ़ा रहा था, बोली भाई वो सर इसको थोड़ा सा पोयम या अगर के रूप में बता दे तो बड़ा अच्छा होता है। मैंने कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ। ठीक है, मैंने सोचा कुछ देर, उसके बाद तुरंत 4-5 लाइन को कंपोज किया और उसको सुनाया। आज वो बच्चा जो है वो डॉक्टर, ठीक है। वो लाइन इस तरीके से था, आप लोगों से कुछ को सुनाया भी होंगे। जानना लोग मुझे, जानना लोग मुझे, हूँ मैं कौन, हूँ मैं कौन, जो भी जाने वो ही बोले है ये काई, नारे भाई मैं हूँ अलगाई, अलगी शैवाल। अब आगे के लाइन में फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। मेहनत करती जीन चुराती, चेंज हो गया फ्लोरिंग, ये जेंडर तो अलग बात है, तो ध्यान दो। खाना में बनाती, पूछो कैसे, CO2 लेकर H2O के साथ, सनलाइट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जानना लोग मुझे, जानना लोग मुझे, ऐसी करके जो है 2-4 वर्सेस का बनाया गया, बच्चों को सुनाया गया। एंड much more interest in reading biology, and the outcome is that they are doctors now. Okay. अच्छा sir, मैंने पॉलिटिकल yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, I do actually. मल्टीपल Thank you जी। मैंने म्यूजिक के माध्यम से पढ़ाना कि म्यूजिक भी पढ़ाना उसके साथ, म्यूजिक के माध्यम से, म्यूजिक तो एक अलग फैकल्टी हो गया, है ना? तो वो तो अपनी जगह पर है ही, वो लॉजिकल भी है, मैथमेटिकल भी है, म्यूजिकल भी है, हर चीज है ना?
सारा इंटेलिजेंसेस उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन म्यूजिक के माध्यम से अगर आप चाहें तो पढ़ा सकते हैं, ना चाहें तो जो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं उनको बोलेंगे भाई ये मान लीजिए केमिस्ट्री का कोई इक्वेशन है, कोई रिएक्शन है। सर बहुत पहले This is multiple हिस्ट्री है जी। बहुत सा पोएम में था सर। जी 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 बिल्कुल था, राइट सर, आई डू एग्री। तो आप ना करें, उनको बोल सकते हैं, उसमें बहुत तरह के लोग होते हैं कि भाई जरा करके बता दो। हो सकता है उनमें से 2-3 उस तरीके के हो जो कि आपको मतलब जो है, हाँ भाई ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड को कैसे तोड़ा जाएगा, क्या कंडीशंस है, उसके लिए भाई वो चाहे तो कर सकते हैं, पोएम कर सकते हैं, पोएम वो कंपोज कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, है कि नहीं, या कोई रोल प्ले भी कर सकते हैं चाहे तो, है कि नहीं। एनीवे, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है भाई, यूजिंग पार्ट और द एंटायर बॉडी इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, परफॉर्मिंग अ टास्क। बॉडी का कोई पार्ट या पूरी बॉडी को जो है यूज कर रहे हैं, है कि नहीं, और आप उससे टीचिंग कर रहे हैं या लर्नर्स जो है वो अपना एग्जिबिट कर रहे हैं। जैसे प्लानिंग एंड अटेंडिंग अ फील्ड ट्रिप पे जब आप जाते हैं तो पूरी बॉडी जा रही है आपके साथ, है ना, और वहां पूरा बॉडी इन्वॉल्व है, चाहे आप एनिमल देखिए, प्लांट देखिए, फ्लोरा फौना, यही सब देखिएगा, वहां जाकर देखें। रोल प्ले कर सकते हैं, माइमिंग कर सकते हैं, माइमिंग समझते हैं ना, मिमिक्री नहीं, मिमिक्री नहीं, माइमिंग का मतलब हो गया कोई चीज को प्रेजेंट करना विदाउट मेकिंग एनी साउंड, है ना, और मेरी बात ना वही हो गया। डांसिंग, बिल्डिंग मॉडल्स एंड ग्रामर गेम्स, तो ये सारे ग्रामर गेम्स आप लैंग्वेज के लिए कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसेस दैट a learner can do and increase. Interpersonal intelligence. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटर वर्ड जहां आ गया, अच्छा, इंटरपर्सनल, इंटर का वर्ड का मतलब ही होगा बिटवीन द टू और मोर देन। देखिए यहाँ इंटरपर्सनल का एक तस्वीर दिखाई दे, बहुत सारे लोग देख सकते हैं। एम्पैथाइजिंग विद अदर्स, एम्पैथाइजिंग विद अदर्स, एम्पैथाइज करने का मतलब हो गया, एम्पैथी आप समझिए ना, एम्पैथी एक होता है सिंपैथी और दूसरा होता है एम्पैथी, समानुभूति, समान अनुभव करना, फीलिंग द सेम। तो कंडक्टिंग अ मीटिंग, दैट इज आल्सो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ग्रुप वर्क, whether it is a project work or whatever it is, practice giving and receiving feedback, survey, polls, group brainstorming, all these are the ways by which the interpersonal intelligence can be developed in the learners. And intrapersonal intelligence, अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जैसे आपके अभी फिलहाल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या और जो ओरेटर्स होते हैं, टाइम क्या लिखा जाएगा मैडम? दे आर द एपिटोम ऑफ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या हुआ भाई? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट our abilities, emotions, feelings and appreciate ourselves. The activities involved for the enhancement of this type of intelligence among learners are writing journal entries, activities involving self-reflection and sharing personal experiences, assessing one's work, setting and pursuing a goal. Day before yesterday, on Saturday,
the CCA activities were suspended. I was sitting in my classroom and I started asking students that please let me know what you are going to be, what is your goal, what do you want to be in future. They started saying something. So whenever we are getting time, we can detect the intrapersonal intelligence among the students. Now, naturalistic intelligence, the abilities and skills to observe, recognize, analyze the natural world that includes flora and fauna. ठीक है? Naturalistic intelligence. Naturalistic intelligence में क्या आ जाएगा भाई? जो नेचर से जुड़ा हुआ हो और नेचर के बारे में इंटरेस्ट करता हो. जैसे हम लोगों के टाइम में काफी पहले अरिस्टोटल साहब, ठीक है, वो नेचर से काफी रिलेटेड थे. लेमार्क थे, आज भी हैं लोग, है ना. आपकी मेनका गांधी अभी हैं, आज के डेट में काफी नेचर से बड़ा लगाव रखती हैं, जो बहुत सारा नोन नाम है ये. इसके अलावे so many people are there who are very much linked with the nature, again closely linked with the nature. और किसान लोग, farmers, they are also naturalistic. कुछ बोल रहे थे सर, सुंदरलाल बहुगुणा. yes sir, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना. चिपको आंदोलन, हर द ट्रीज, भाई जान दे देंगे लेकिन ट्रीज को कटने नहीं देंगे. बहुत अच्छी बात. हाँ, आज भी है, मतलब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. आज जो है आपकी गवर्नमेंट जो है वो नेचुरली इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने सफाई अभियान वगैरह बहुत सारा कर रखा है नदियों का, और इसके अलावे भी स्वच्छ भारत वगैरह क्या क्या है. तो ये सारी चीजें जो है वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल है. And the same lies in different students, and we can explore it and encourage them for the same. अब आइए, लास्ट एक है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस. एग्जिस्टेंशियल हो गया. हाँ, our sensitivity to our existence, asking questions about our life and where have we originated from and where do we go. कहाँ से आए हैं, कहाँ से जाना है. ये भाई एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग हुआ, ठीक है. तो भगवान बुद्ध हुए, गया में उनको निर्माण मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट हुआ उनका. भगवान महावीर थे, विवेकानंद साहब थे, रामकृष्ण परमहंस थे, आज भी बहुत सारे हैं लोग स्पिरिचुअल गुरुज, एक्चुअल स्पिरिचुअल गुरुज, है ना. तो हमारे अंदर भी ऐसे हैं लोग, हमारे अंदर भी पंडित सर, हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के ओनर हैं. राइट सर, है ना. और मैं कहूँ आपसे, अगर तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी आपके बारे में अगर कहूँ तो, बिकॉज वेरी ऑफन आई फाइंड पंडित सर टॉकिंग अबाउट द लाइफ एंड वेयर हैव वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी आर गोइंग. So very often he is, and not only that, I have seen him taking classes of existential purposes or facts in the classes even. Okay, fine. जी, वही जो बतिया है, ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट पढ़े हम लोग, ये एक बच्चे के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट करना कि एक ही टॉपिक को डिफरेंट एंगल से पढ़ाना है. मैं बता रहा हूँ सर, जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है. हाँ,
एक सिप मैं भी ले लूं ताकि गला खुल जाए। एक सिप नहीं सर, ज्यादा लो। अब आपका सवाल सर, आप क्वेश्चन अपना करें। मेरा ब्रेन अब खुल गया, मैंने एक सिप लिया। मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो है, तो ये क्या एक बच्चे में डिफरेंट एस्पेक्ट डेवलप करना है कि एक ही टॉपिक को डिफरेंट एस्पेक्ट से पढ़ाना है? दोनों बातें हैं सर, दोनों ही बातें। वो तो इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। तो वही बात तो है सर। मल्टीपल सर यही तो इसका लिमिटेशन है। देखिए इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये इसका लिमिटेशन है कि नहीं? तो अगर बात करें तो ये क्या है, कॉमन सेंस की बात है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की बात है, इंटरडिसिप्लिनरी जो आपका टीचिंग एंड लर्निंग है उसी की बात है। उसी के लिए एक नया टर्म है जो हॉवर्ड गार्डनर ने दिया, और कोई नई बात नहीं है। बहुत अच्छा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी देखना है। टाइम मैनेजमेंट तो वो तो आप मुझे डायरेक्ट करें, मैं देखूंगा। 2 मिनट के अंदर उसका ठीक है सर। सो in conclusion, to conclude this session, I simply want to say that all the learners have different types of intelligences, and it is our responsibility to explore those intelligences. They must be given an opportunity to be explored. So it should be explored and we can explore it. It will help them in grooming their personality. This is nothing, as you told, sir. This is multidisciplinary and art integration, a form of this. Because there also the different types of intelligences are integrated. So no one is devoid of any sort of intelligence. In this world, everyone, which is created by the God, everyone is empowered with one or more intelligence, and that should be taken care of. We should not avoid, we should not ignore those students who are very good in drawing, painting, music, or sports and games, but not very good in academics, in learning mathematics and science, or in language. Okay, they should also be given due attention so that they may groom in their life. So this is all about this session. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. For listening to me very patiently.